برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں کمی، مرغی کا گوشت 6 روپے مہنگا، قیمت 522 روپے کلو ہو گئی۔ فارمی انڈے 269 روپے کی سطح پر برقرار ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے ہمارے نمائندہ عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، کیا تفصیلات ہیں قیمتوں کے حوالے سے؟ بالکل، آج پولٹری مصنوعات میں برائلر کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جبکہ انڈوں کی قیمتیں جو کہ گزشتہ کئی روز سے مسلسل بڑھائی جا رہی تھی، آج جو ہے انڈوں کی قیمتوں کو جو ہے مستحکم رکھا گیا 269 روپے فی درجن کی سطح پر۔ اسی طرح انڈوں کی پیٹی 7,950 روپے کی کر دی گئی، جبکہ مارکیٹ میں انڈا جو ہے 22 روپے سے لے کر 23 روپے تک شہریوں کو فروخت کیا جا رہا ہے، اور جو فی درجن قیمت شہریوں سے وصول کی جا رہی ہے انڈوں کی، وہ 270 سے 275 روپے فی درجن تک ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ موسم میں تبدیلی جو ہے وہ واضح طور پر اب محسوس کی جا رہی ہے، اور انڈوں کی کھپت جو ہے وہ غیر معمولی طور پر کم ہوئی ہے، لیکن قیمتیں جو ہے تاحال کم نہیں ہو رہی ہیں۔ تاہم دوسری جانب جو برائلر ہے اس کی قیمتوں میں آج دوسرے روز بھی اضافہ کیا گیا۔ سپلائی کو متاثر کر کے مصنوعی قلت پیدا کی گئی ہے تاکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بگاڑ پیدا ہو اور قیمتیں جو ہیں ان کو بلند رکھا جا سکے، اور آج 6 روپے فی کلو تک کا اضافہ کیا گیا۔ برائلر گوشت کی قیمت جو کہ گزشتہ روز 516 روپے فی کلو تھی، آج 6 روپے اضافے کے بعد 522 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت میں 4 روپے فی کلو تک کا اضافہ کیا گیا۔ ہول سیل زندہ برائلر 340، جبکہ پرچون زندہ برائلر 348 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، اور گزشتہ روز 9 روپے فی کلو تک کا اضافہ کیا گیا تھا، آج مزید 6 روپے بڑھا دیے گئے۔ 2 روز میں برائلر گوشت جو ہے 15 روپے فی کلو تک مہنگا کر دیا گیا، اور 550 روپے فی کلو کی سطح پر برائلر کی قیمتیں ایک بار پھر پہنچ چکی ہے۔ اور اس حوالے سے جو مارکیٹ ذرائع ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ برائلر کی قیمتوں کو بلند رکھنے کے لیے یا تیز رکھنے کے لیے مصنوعی قلت جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے، تاکہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بگاڑ پیدا ہو اور قیمتیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شہریوں سے وصول کی جا سکے۔ عید الفطر کی آمد قریب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب برائلر کی قیمتیں بھی جو ہے وہ تیز ہونے لگی۔ اچھا عبدالقادر، یہ بتائیے گا کہ قلت پیدا کی جا رہی ہے تو اس پر انتظامیہ نے ابھی تک کیا ایکشن لیا ہے؟ ہاں جی بالکل، اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے صرف سرکاری ریٹ جو ہے وہ ان کا اجرا کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں ہونے والے بگاڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے یا سپلائی کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ فی الحال کوئی اقدامات جو ہے وہ عملی طور پر دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دوسرے روز بھی برائلر کی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر سپلائی بہتر نہ کی گئی تو برائلر کی قیمتیں عید الفطر تک جو ہے مزید بڑھ جائیں گی، جس کی وجہ سے شہریوں کو برائلر کے حوالے سے بھی مہنگائی کا مزید سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ عبدالقادر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، اقبال ٹاؤن میں 3 ڈاکوؤں کا گھر پر دھاوا، ڈولفن اسکواڈ سے فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو ہلاک اور تیسرا فرار ہو گیا۔ فرانسک ٹیم نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے ہیں، جبکہ پولیس نے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ شہر میں جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا مزید تنگ، اقبال ٹاؤن میں 3 ڈاکوؤں کا گھر پر دھاوا، اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کی کوشش۔ اطلاع ملنے پر ڈولفن اسکواڈ موقع پر پہنچ گئی، ڈاکوؤں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو ہلاک اور تیسرا فرار ہو گیا۔ پولیس نے ہلاک ڈاکوؤں کے 2 پسٹل تحویل میں لے لیے۔ متاثرہ فرد کا کہنا تھا کہ 2 ڈاکو دیوار پھلانگ کر گھر میں گھس گئے اور ایک گھر کے باہر کھڑا ہو کر پہرا دیتا رہا۔ ڈاکو نے اہل خانہ کو باندھ کر لوٹ مار شروع کر دی۔ 3 بندے تھے، وہ دیوار پھلانگ کے اندر گئے ہیں، اندر سے وہ دروازہ تھا جالی والا، اس کی جالی کاٹ گئی، جالی کاٹ کے تو پھر وہ اندر گھسے ہیں۔ میرے اندر لیڈیز تھیں، ان کو ایک کمرے بند کیا ہے، ایک باہر کھڑا ہو گیا گن لے کے، باقی وہ گھر کو تلاشی لینے شروع ہو گئے ہیں، تو اوپر سے جو ملا وہ لے کے چلے گئے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن محمد عثمان ٹیپو نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور فرار ہونے والے ڈاکو کی جلد از جلد گرفتاری کا بھی حکم دیا۔ لاہور میں ڈاکوؤں کی عیدی مہم عروج پر ہے۔ چوری اور ڈکیتی کی بے شمار وارداتیں، عام شہریوں کے ساتھ تاجر بھی عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ انارکلی کے تاجر سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ انارکلی بازار میں عید شاپنگ کے لیے آنے والے شہری لٹنے لگے، دکانوں پر بھی ڈاکے، صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو تاجروں نے شدید احتجاج کیا، پلے کارڈ اٹھائے، تاجروں نے شدید نعرے بازی کی۔ صدر دھنی رام روڈ انارکلی ارشد خان اور سابق نائب صدر لاہور چیمبر حارث عتیق نے کہا کہ گزشتہ چند روز میں ڈکیتی کی 4 وارداتیں ہو چکی ہیں، پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، 72 گھنٹوں میں ملزم گرفتار نہ ہوئے تو شٹر ڈاؤن کر کے احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ متاثرہ تاجروں کا کہنا تھا کہ پولیس ملزمان کے خلاف شکنجہ کسنے کے بجائے سیاسی مخالفین کی پکڑ دکڑ میں لگی ہے۔ آپ کی وساطت سے اس چینل سے یہ کہوں گا، اگر 72 گھنٹے میں انہوں نے ملزم نہ پکڑے تو ہم
पूरा लाहौर ब्लॉक करेंगे। मुजरिम को नहीं पकड़े जनाब, सियासी कारकुन पकड़ने के लिए वही काफ़ी है। अगर 72 घंटों के अंदर वारदातियों का, चोरों का, डकैतों का सुराग नहीं लगाया गया तो हम अनारकली से एक भरपूर रैली आज आप देख रहे हैं, इधर सैकड़ों ताजर इकट्ठे हुए हैं, सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं। ये माल रोड पे जाएंगे, हम लोग शरीफ लोग हैं, ताजर शरीफ तबका है, हमें मजबूर मत करें। मुजाहिरे में अनारकली के ताजर मोहम्मद इसाक, हाजी शेख शाहिद, इमानुल्लाह और दीगर भी शरीक थे। अहम और बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक की बेहतरी के लिए ट्रैफिक पुलिस के बाद पेट्रोलिंग पुलिस को भी चालान करने का इख्तियार मिल गया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पेट्रोलिंग पुलिस को चालान करने के इख्तियार का मुरासला जारी कर दिया। ट्रैफिक पुलिस की तर्ज पर पेट्रोलिंग पुलिस को भी चालान करने का इख्तियार मिल गया। मुरासले की कॉपी डीआईजी पेट्रोलिंग समेत पंजाब के तमाम रीजन्स के एसपीज़ को भिजवा दी गई। मुरासले में कहा गया है कि पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान भी ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ वर्जी पर चालान कर सकेंगे। इससे पहले पेट्रोलिंग पुलिस से साबिक आईजी ने 2 साल कबल जाली चालान बुक्स पर बरामद होने पर चालान का इख्तियार वापस ले लिया था। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वालिकुर रहमान ने पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 पर दस्तखत करके जारी कर दिया है। आइन के आर्टिकल 128 की शिक 1 के तहत तफवीज़ करदा इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ऑर्डिनेंस जारी किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल की खिदमात को क्लाइंट और अटॉर्नी ताल्लुकात को मंजूर शुदा असूलों के मुताबिक रेगुलेट करने के लिए मज़कूरा एक्ट में तरमीम की गई है। गवर्नर पंजाब ने पंजाब नापसंदीदा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तहलील ऑर्डिनेंस 2023 भी जारी कर दिया, जो फौरी नाफिजुल अमल होगा। लाहौर में गुज़श्ता 3 माह में 128 बेघर और नशे के आदी अफराद सड़कों और फुटपाथों पर दम तोड़ गए। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब ने रिपोर्ट जारी कर दी है। बेघर और मुनशियात के आदी अफराद की हलाकतों में इजाफा। लाहौर में रवां साल के पहले 3 माह में 128 अफराद जान से गए। गुज़श्ता साल इन्हीं दिनों में हलाकतों की तादाद 108 थी। जनवरी में 55, फरवरी में 42 और मार्च में 31 बेघर और मुनशियात के आदी अफराद की अमवात हुई। कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन ने डॉक्टर इकराम के हमरा ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि लाहौर की सड़कों पर नशा आवर अद्वियात की फरोख्त रुक न सकी है। अब हालत ये है कि मर्दों के साथ साथ खवातीन भी नशा करते नजर आती हैं। शहर में क्रिस्टल आइस और चर्स के नशे में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया। कोकेन, हीरोइन और वेप के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। मिडिल क्लास तबका की एक बड़ी तादाद इंजेक्शन, चर्स, एफ्यून, भंग समेत दीगर नशे का इस्तेमाल कर रही है। मिडिल क्लास के लोगों में पान, सिगरेट, नस्वार, गुटखा, भंग और शराब, और सबसे बड़ा जो अलमिया है बोथ साइड अपर एंड मिडिल क्लास में चर्स का ज़्यादा इस्तेमाल देखने में आया है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची के बाद लाहौर शहर का शुमार मुनशियात का इस्तेमाल करने वाले दूसरे बड़े शहर में होने लगा है। लाहौर की सड़कों पे हज़ारों इंजेक्शन उसी तरह फ़रोख्त होते रहे और जो नशा करने वाले अफराद हैं वो उन इंजेक्शन का सहारा लेते रहे। कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम के मुताबिक मुनशियात के तदारुक और नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए हुकूमत ने डिवीजनल लेवल पर अस्पताल की मंजूरी दी है। अब आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की पकौड़ियाँ बनाने वाले यूनिट्स की चेकिंग। शालिमार टाउन में ममनुआ खुले रंग और गंदे पानी से पकौड़ियाँ तैयार करने वाले 3 यूनिट्स बंद कर दिए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर का कहना था कि नीले ड्रमों और जंग आलूद बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात, मच्छरों, मक्खियों और कीड़ों की भरमार पाई गई। प्रोडक्शन एरिया से बदबू और तैयार पकौड़ियों को ज़मीन पर बगैर ढांपे रखा गया। खुराक के मयार पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जाएगा। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि हुकूमती इक़दामात ना आए आवाम के काम। सरकारी रेट लिस्ट में 2 सब्ज़ियाँ मज़ीद महंगी कर दी गईं। मार्केट में सब्ज़ियाँ सरकारी निरखों के बरक्स महंगी फ़रोख्त। अदरक 750, लहसुन चाइना 450, प्याज और टमाटर 90 रुपये किलो तक फ़रोख्त होने लगे। मार्केट में फल भी सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त। सेब 450 रुपये किलो, केला 400 रुपये दर्जन में दस्तयाब। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, क्या वजूहात हैं सब्ज़ियाँ और फल मज़ीद महंगे होते जा रहे हैं? आज बिल्कुल ये डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, क्योंकि सप्लाई जो है वो बेहतर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से सब्जियों और फलों की कीमतें जो है वो सरकारी नस्लनामों के मुताबिक शहर की मार्केटों में फरोख्त नहीं की जा रही। और इंतजामिया की जानिब से भी जो सरकारी रिलीज जारी किए जाते हैं उन पर अमल दरामद जो है वो अमली तौर पर नहीं करवाया जाता, जिसकी वजह से शहरियों को जो तय करदा नरखनामे हैं उनके बरअक्स महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदनी पड़ती हैं। प्याज आज 60 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 90 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 60 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन दर्जा अव्वल का मियारी टमाटर मार्केट में 90 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 325 के बरक्स 450 रुपये फी किलो तक बदस्तूर फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक 650 रुपये के बरक्स 750 रुपये फी किलो तक मार्केट में
فروخت کیا جا رہا ہے۔ لیمو کی قیمت میں تاہم آج جو ہے وہ 17 روپے کا اضافہ کیا گیا، 320 روپے سرکاری ریٹ کی قیمت ہے دیسی لیمو کی، لیکن مارکیٹ میں یہی دیسی لیمو جو ہے وہ 400 سے 450 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹنڈے فارمی 50 روپے کے برعکس 70 روپے تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بیگن 60 کے برعکس 80 روپے، کریلے 70 کے برعکس 100 روپے اور بند گوبھی 40 روپے مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں 60 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ بھنڈی 175 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں بھنڈی کی فروخت جو ہے وہ 220 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ اروی 150 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن اروی کی فروخت 180 سے 200 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ پھلوں کی صورتحال جو ہے وہ بھی شہریوں کے لیے کوئی جو ہے وہ شائن نہیں ہے، کیونکہ پھل جو ہیں وہ بھی سرکاری محکموں کے طرف سے مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ سیب 320 روپے مقرر کیا گیا ہے، لیکن مارکیٹ میں 450 روپے فی کلو تک سیب کالا گولی کی فروخت کی جا رہی ہے۔ کیلا درجہ اول 225 روپے، لیکن بدستور 400 روپے فی درجن تک مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیلا درجہ دوم جو ہے وہ 170 کے برعکس 250 روپے درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ دیگر تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ بھی سرکاری محکموں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ عبدالقادر، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، سابق وزیر اعظم عمران خان انسداد دہشت گردی عدالت پیش نہ ہوئے، ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی درخواست منظور کر لی گئی۔ عمران خان سمیت دیگر رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 4 مئی تک توسیع کر دی گئی۔ سیشن کورٹ نے شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی عبوری ضمانت میں 2 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عبوری ضمانت کی میعاد ختم مگر عمران خان انسداد دہشت گردی عدالت پیش نہ ہوئے۔ وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی استدعا کی، کہا کہ سابق وزیر اعظم کو سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اگر درخواست ضمانت مسترد ہو گئی تو پھر گرفتاری کیسے ممکن ہوگی۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے بتایا کہ سنائپر شوٹر کی رپورٹس ہیں۔ ڈیپٹی پروسیکیوٹر نے بتایا کہ پولیس فائل کے مطابق عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ عدالت نے ایک سماعت کے لیے عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگوائی۔ دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز بوٹر کا پر وقت عدالت نہ پہنچے اور مچل کے داخل نہ کرانے پر فواد چودھری اور حماد اظہر پر ناراضگی کا اظہار۔ دونوں کے پہنچنے پر عدالت نے گرفتاری کا حکم واپس لے لیا۔ عبوری ضمانتوں میں 4 مئی تک توسیع کر دی۔ عدالت میں حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے کہا کہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں۔ حماد اظہر بولے، حکومت نے چن چن کر پی ٹی آئی کارکنوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا۔ بہیمانہ قتل کا جو پرچہ ہے وہ انہوں نے ہم لوگوں کے اوپر دیا، اس میں عمران خان ملزم ہے، حماد اظہر صاحب ملزم ہے، میں ملزم ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے اس مذاق کا جو اس ریاست میں ہو رہا ہے۔ ضلع شاہ کے قتل کے اوپر پولیس کی مدعیت میں ہی پولیس کے 2 ورژن سامنے آ رہے ہیں۔ ایک پولیس کا ورژن یہ ہے کہ اس کو عمران خان، حماد اظہر، فواد چودھری اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا، جس کا آج ہم یہاں پہ ضمانت لے رہے ہیں جس کے لیے، اور دوسرا پولیس ہی کہہ رہی ہے کہ وہ ایک مختلف وقت پہ حادثے میں ان کی جان چلی۔ سیشن عدالت میں ضلع شاہ کے ایکسیڈنٹ کے معاملے پر شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد اور فواد چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے عبوری ضمانت میں 2 مئی تک توسیع کر دی۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا، اگر وقت پر الیکشن نہیں ہوتے تو سمجھ جائیں انہوں نے آئین پر ضرب لگائی ہے۔ حکومت نے کیسز محض پریشان اور ہراساں کرنے کے لیے بنائے ہیں۔ آئین واضح ہے، 1 مارچ کے بعد دوسری مرتبہ سپریم کورٹ نے ایک وضاحتی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس کے بعد کلیئر انسٹرکشن دی ہیں، 10 تاریخ کو رپورٹ پیش کرنے کے لیے کہا گیا، اور حکومت لیت و لال سے کام لے رہی ہے اور پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ رہی ہے، جبکہ یہ ایگزیکٹو کا فیصلہ ہے۔ دہشت گردی کی عدالت میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہر روز ہماری پیشیاں ہوتی ہیں، ہر روز ہم سے پوچھا جاتا ہے ان کاموں کا جن کے بارے میں نہ ہمیں کوئی خبر نہ پتہ، اور افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے مسلسل اتنا جھوٹ بول کے انصاف کے اوپر ایک مکمل طور کے اوپر ایک پابندی لگا دی ہے۔ انہوں نے کہا انصاف نہیں کسی کو ملنا چاہیے۔ عدالتوں میں سیاسی رہنماؤں کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ 36 لاکھ روپے ٹیکس واجب الادا ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو ایک اور نوٹس مل گیا ہے۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب کی جانب سے لگژری ہاؤس ٹیکس کا نوٹس عمران خان کو بھیج دیا گیا۔ محکمہ کی 2 رکنی ٹیم نے نوٹس وصول کروانے زمان پارک پہنچی۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ 7 روز کے اندر نوٹس پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں الیکشن کمیشن کو خط لکھا جائے گا۔ عمران خان پر 36 لاکھ روپے ٹیکس واجب الادا ہیں۔ ای ٹی او ایکسائز عدیل امجد اور انسپیکٹر آمنہ رشید کی جانب سے عمران خان کو نوٹس بھیجا گیا ہے۔
दूसरी जानिब मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच में तमाम काबिल जज मौजूद हैं। अदालती बिल के खिलाफ समाअत से कबल ही शहबाज काबीना का बेंच को मुस्तरद कर दिया गैर जमहूरी और गैर आइनी अमल है। इलाही और चौधरी वजाहत हुसैन से सियासी शख्सियात की मुलाकात। पीटीआई सेंटर पंजाब के साबिक सदर उमर डार और आसिफ चट्टा एडवोकेट ने मुलाकात की। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ का कहना था कि शहबाज शरीफ काबीना ने हर धर्मी इख्तियार कर रखी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच में तमाम तर काबिल जज मौजूद हैं। अदालती बिल के खिलाफ समाअत से कबल ही शहबाज काबीना का बेंच को मुस्तरद कर देना गैर जमहूरी और गैर आइनी अमल है। पाकिस्तान के तमाम वकला, बार कौंसिल्स और अवाम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। चौधरी परवेज इलाही का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के बगैर हुकूमत और रियासत का कोई तस्वुर नहीं। हुकूमत को गलत फहमी है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद रोक सकती है। कौमी खजाने में पैसा अवाम का है। शहबाज शरीफ इलेक्शन फंड्स रोकने वाले कौन होते हैं? मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि गुज़श्ता साल से अब तक मजीद 1 करोड़ अफराद बेरोजगारी की दलदल में धंस चुके हैं। साफ और शफाफ इलेक्शन ही मौजूदा मुआशी बहरान से निकलने का वाहिद ऑप्शन है। तहरीक इंसाफ के इमरान खान के सपोर्टर्स और रजाकारों को इंतखाबी मुहिम में शामिल करने का फैसला। असद उमर कहते हैं तहरीक इंसाफ का हर नौजवान पाकिस्तान और इमरान खान का कीमती सरमाया है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की ज़ेर सदारत जेल रोड ऑफिस में अहम इजलास हुआ, जिसमें इंतखाबी अमूर के हवाले से तफसीली बातचीत की गई और इंतखाबी मुहिम को पूरे मुल्क में फैलाने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इजलास से खिताब में असद उमर का कहना था कि आइन की बालादस्ती की जद्दोजहद में नौजवान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से फ़रार के लिए आइन शिकनी की मुर्तकिब हो रही है। इजलास में हमाद अजहर, नईमुल हक, अब्दुल करीम खान, अजहर मशवानी, सेनेटर एजाज चौधरी, अली वड़ाइच, अरसलान खालिद और अवैस यूनुस ने भी शिरकत की। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास कहते हैं मेरा जुर्म यह है कि मैंने आज़ाद कश्मीर की बात की। चपरासी को फारिग करना हो तो अदालतों में साल केस चलता है। मुंतखब वज़ीर आज़म को 1.5 मिनट में फारिग कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि इस वक्त जमहूरियत के नाम पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म सबसे बड़े ओहदे पर होता है, उसे बुलाकर 1.5 मिनट में फारिग कर दिया जाता है। मेरा जुर्म ये है कि मैंने आज़ाद कश्मीर की बात की, पाकिस्तान की बात की। देखना ये है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर इससे पहले ऐसी कोई नज़ीर नहीं है कि वक्त के वज़ीर आज़म को बुलाया जाए और 1.5 मिनट के अंदर उसको उसके ओहदे से नायल करने का डिक्लेरेशन दिया जाए। हम ये समझते हैं कि जमहूरियत के नाम के ऊपर यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। हमारा जुर्म ये है कि हमने पाकिस्तानियत की बात की। मेरा जुर्म इसलिए बन गया कि मैंने जहाँ ये कहा कि पाकिस्तान मेरा ईमान है, मैंने कहा कि कश्मीर की गैरत पे, कश्मीर की इज्जत पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सरदार तनवीर इलियास का मजीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर में जब हम आए तो उस वक्त बेरोजगारी आसमान को छू रही थी। हमने सियाहत और IT के शोबे को खुसूसी तौर पर फोकस किया। गिलगित और आज़ाद कश्मीर के दरमियान बस सर्विस शुरू की। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। महंगाई के हवाले से बात करें और आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी में बेहतरी ना आ सकी। आटे की फराहमी ना होने के बराबर रह गई है। सस्ता घी भी इंतहाई कम मिकदार में फराहम किया जा रहा है, जबकि आम सारिफ के लिए कम सब्सिडी की पॉलिसी पर अमल भी जारी है। सस्ते स्टोर्स आवाम को रिलीफ फराहम ना कर सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब ही नहीं। गुज़श्ता कई हफ्तों से यूटिलिटी स्टोर पर आटे की सप्लाई मुतासर है। सस्ता घी भी महदूद मिकदार में दिया जा रहा है। आम सारिफ के लिए कम सब्सिडी की पॉलिसी पर अमल भी जारी है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफीन को ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफीन के लिए घी 300 रुपए फी किलो है। आम सारिफ को घी 490 रुपए फी किलो मिल रहा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफीन के लिए चीनी 70 रुपए फी किलो है। आम सारिफ को चीनी 91 रुपए फी किलो में दी जा रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफीन के लिए 10 किलो आटे के निर्ख 400 रुपए मुकर्रर। आम सारिफ को 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में दिया जा रहा है। शालीमार यूटिलिटी स्टोर पर आए सारिफीन अशिया की अदम दस्तयाबी का शिकवा करते दिखाई दिए हैं। कहते हैं आटे के हसूल के लिए बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। आटा बहुत ज़रूरी था, वो नहीं मिला यहाँ से। जो दूसरी चीज़ें खरीदी है ना, वो भी बाजार से महंगी मिलती हैं यहाँ पर। इस फ़ायदा क्या है इस यूटिलिटी स्टोर का? आटा लेने आए थे लेकिन आटा नहीं मिला है। जिसे हमने बेसन ख़रीदा है और शैम्पू लिया है और चीनी मांग रहे थे लेकिन कह रहे मंथ में एक दफ़ा ही मिलती है।
तो बस आटे की वजह से ज़लील हो रहे हैं। सारिफीन को 2 कैटेगरीज में तकसीम करने से यूटिलिटी स्टोर से रश तो ख़त्म हो गया, मगर आटे और घी की फराहमी मतलूबा मिकदार में ना हो सकी। अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शहरियों की शिकायत पर आटे की फराहमी के बाज़ बंद सेंटर्स को फिल-फौर ओपन करने की हिदायत कर दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अचानक मॉडल बाजार सब्ज़ाजार पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने मुफ्त आटे की फराहमी के अमल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मॉडल बाजार सब्ज़ाजार में मर्द और ख़वातीन से गुफ्तगू की और आटे की फराहमी के हवाले से इस्तफसार किया। बाज़ शहरियों ने शनाख्ती कार्ड की तस्दीक न होने के बारे में शिकायत की, जिस पर मोहसिन नकवी ने शिकायत के फौरी तौर पर अजाले का हुक्म दिया। शहर में बाज़ सेंटर्स बंद किए जाने के हवाले से शहरियों की शिकायत पर बंद सेंटर्स को फिल फॉर ओपन करने की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला मियो अस्पताल भी गए और साहिवाल में धक्कम पैल से जख्मी होने वाली बुजुर्ग खातून सुगरा बीबी की इयादत की। मोहसिन नकवी ने जख्मी खातून के बेटे से मुलाकात की, जिसने वालिदा के इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। MS मियो अस्पताल को खातून की मजीद देखभाल की हिदायत की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि IMF से मामला जल्द तय पाने की इतलात से रुपए को संभाला मिलने लगा। डॉलर की कदर में कमी, सराफा मार्केट में सोना भी सस्ता हो गया है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं। IMF से मामला जल्द तय होने की इतलात, रुपए को संभाला मिलने लगा। डॉलर की कदर में कमी, डॉलर रेट में 1 रुपए 72 पैसे की कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर रेट 284 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 290 रुपए तक आ गया। पीर और मंगल को डॉलर 3.5 रुपए महंगा हुआ था, जबकि बुध और जुमेरात को डॉलर की कदर में 3 रुपए कमी हो चुकी है। मार्केट ज़राए के मुताबिक UAE से 1 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग और IMF से जल्द डील तय होने की इतलात से मस्बत रुझान आया है। इसी तरह मुल्की सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में कमी, सोना 2,500 रुपए तक सस्ता हो गया। 24 कैरात खालिद सोने की कीमत 2,16,500 रुपए हो गई। 22 कैरात सोना 1,93,600 रुपए, जबकि 21 कैरात सोना 1,86,750 रुपए तोला हो गया। चांदी की कीमत 2,510 रुपए तोला की सतह पर बरकरार है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पंजाब में टाउन प्लानिंग का सबसे पुराना इदारा फाटा ज़बू हाली का शिकार है। टाउन प्लानिंग का जिम्मेदार इदारा टाउन प्लानर से ही महरूम है। फाटा में फील्ड अफसरान की 50% सीटें खाली होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि लाहौर न्यूज़ की निशानदही पर स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग का नोटिस DG फाटा से रिपोर्ट तलब कर ली है। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी में तैनातियों का मामला, शहरों की टाउन प्लानिंग का जिम्मेदार इदारा टाउन प्लानर से ही महरूम। फाटा में फील्ड अफसरान की 50% सीटें खाली होने का इंकशाफ हुआ है। साबिक हुकूमतों ने रिटायरमेंट के बाद नई भर्तियां ही न की। अफसरान की किल्लत के सबब पंजाब की निजी हाउसिंग सोसाइटीज के दौरे भी बंद कर दिए गए। फाटा बजट के मुताबिक फील्ड अफसरान की 50 सीटें हैं। फील्ड अफसरान की 23 असामियों पर कोई तैनाती नहीं की गई। डायरेक्टर इंजीनियरिंग की 6 माह से 4, डेप्यूटी डायरेक्टर की 17 में से 4 सीटें खाली हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की 5 सीटें तैनाती की मुंतजिर। डेप्यूटी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग ने 9 में से 7 और असिस्टेंट डायरेक्टर की तमाम 3 सीटें खाली हैं। अफसरान की कमी के सबब फाटा के सरकारी अमूर शदीद मुतासिर हो रहे हैं। लाहौर न्यूज़ की निशानदही पर स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग साले सईद ने नोटिस ले लिया। DG फाटा से रिपोर्ट तलब, खाली सीटों पर तैनातियों के लिए पंजाब हुकूमत को समरी भेजने की हिदायत भी कर दी है। पंजाब सेंट्रल बिजनेस अथॉरिटी को एक और मेगा प्रोजेक्ट तफवीज़ कर दिया गया। फिरोजपुर रोड पर बुलंदोबाला इमारतें बनाने का मंसूबा CBD को दे दिया गया है। प्लान के तहत कैंप जेल फिरोजपुर रोड काहना के करीब मुंतकिल किया जाएगा। फिरोजपुर रोड पर रेस्क्यू 1122 का ऑफिस गुलबर्ग मुंतकिल करके बुलंद इमारतें बनाई जाएंगी। कैंप जेल की 28 एकड़ जगह पर कमर्शियल हब बनेगा। रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग में बुलंद IT टावर्स बनाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत को इस मंसूबे से 275 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। CBDA के मुताबिक कमर्शियल इमारतें 700 फुट की होंगी। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद 2 साल में मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। महकमा माहौलियात पंजाब का एहसन इक़दाम, धुआं कंट्रोल करने के लिए एमिएशन कंट्रोल सिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। स्टील मिल्स को 30 अप्रैल की डेडलाइन दे दी गई। DG महकमा माहौलियात कहते हैं मिल्स मालिकाना आसान इक़सात पर कर्जा स्कीम से इस्तिफ़ादा हासिल करके सनती पहिया चलाएं और माहौलियाती आलूदगी भी कंट्रोल करें। फ़िज़ाई आलूदगी के तदारुक के लिए महकमा माहौलियात पंजाब के कमेटी रूम में अहम इजलास हुआ। इजलास की सदारत DG महकमा माहौलियात नादिया साकिब ने की। चेयरमैन स्टील मिल्स एसोसिएशन चौधरी शेर गुज्जर, चेयरमैन रावी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इनाम भट्ट और कन्वीनियर कमेटी स्टील मिल्स लाहौर चैम्बर तैयब मलिक भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में बताया गया कि स्टील मिल्स के लिए इमिशन कंट्रोल सिस्टम के स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं। स्टील मिल्स मालिकान को 30 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है। DG महकमा माहौलियात नादिया साकिब ने कहा कि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज
इमिशन कंट्रोल सिस्टम की तनसीब के लिए 1 करोड़ रुपए तक आसान कर्जा स्कीम मुतारिफ करा दी है। स्टील मिल्स मालिकान इससे मुस्तफीद हों और 30 अप्रैल तक माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को अपनाएं। डेडलाइन के बाद सख्त मॉनिटरिंग और कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। हमने आज स्टील मिल एसोसिएशन से रिक्वेस्ट की है कि मेहरबानी करके ये लोन अवेलेबल है, ये बहुत अच्छा लोन है, 10 मिलियन का लोन है जो पिसिक दे रहा है और 2% पे दे रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो आप स्पेसिफिकेशंस स्क्रबर्स की मौजूद हैं, आप अगर उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो वी आर अवेलेबल। स्टील मिल्स के ओहदेदारान ने इमिशन कंट्रोल सिस्टम की तनसीब की डेडलाइन में रियायत देने का मुतालिबा किया है। पोल्यूशन डिवाइस जो है वो जिन लोगों ने नहीं लगवाई, हम खुद एसोसिएशन उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वो लगाएं ना, और इसके लिए हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें 30 अप्रैल तक टाइम चाहिए। अगर 50% या 30-40% भी अगर हम काम कर लेते हैं इस पे, मिलों सारे मिल वाले भाई कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह चैम्बर भी कोशिश करेगा, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट एंड मींस के सारी एसोसिएशंस ये भी कोशिश करेंगी कि हम मिलों को और ज़्यादा टाइम ले दें, महीना बढ़ा दें या 2 महीने बढ़ा दें। डीजी साहबा ने मेहरबानी फरमाई है, उन्होंने बैनस्तौर यही कहा है कि एक अदारा शुरू कर लेता है, उसका 50-60% कंप्लीट कर लेता है तो वो मे बी के ग्रांट कर देंगी फर्दर पीरियड। इजलास में डायरेक्टर माहौलियात पंजाब नसीमुर रहमान शाह, डिप्टी डायरेक्टर लाहौर अली इजाज भी शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लेस्को समेत बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों के मुलाजमीन में मायूसी, बोनस मनसूखी के खिलाफ लेस्को मुलाजमीन सरापे एहतजाज हैं। वापडा पैगाम यूनियन ने लेस्को हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज किया। बोनस मनसूख क्यों किया गया? वजारत पावर डिवीजन की जानिब से लेस्को समेत बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों और NTD मुलाजमीन सरापा एहतजाज। वापडा पैगाम यूनियन का लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जनरल सेक्रेटरी पैगाम यूनियन तौकीर इस्लाम का कहना था कि बोनस खत्म करना मुलाजमीन के साथ ज्यादती है। वजारत पावर डिवीजन से मुतालबा है कि फौरी तौर पर बोनस दिया जाए। 80 अरब रुपए का जो पैकेज है वो हुकूमत ने तरक्याती फंड को दिया है, तरक्याती फंड MNA बेस को दिया 80 अरब रुपए का। हमारे लिए एक बोनस को जो ऐलान है वो हुकूमत के खजाने पर बारे गिरा है। हम ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर अगर हमारे बोनस का इजरा ना किया गया तो पैगाम यूनियन इंशाल्लाह इस एहतजाज का जो दायरा कार है वो पूरे मुल्क तक फैला देगी। मुजाहिरीन का कहना था कि बोनस हमारा हक है, अगर अदायगी ना हुई तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। दूसरी जानिब निगरान सूबाई वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर ने कहा है कि महकमों में करप्शन ख़त्म करने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। करप्ट अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमात दर्ज करवाएंगे। निगरान सूबाई वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर ने ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी टीपा ऑफिस में इजलास की सदारत की। सूबाई वजीर को महकमे की कारकर्दगी बारे आगाह किया गया। वजीर हाउसिंग ने मुख्तलिफ शाहराहों को सिग्नल फ्री करने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि महकमों में करप्शन खत्म करने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। करप्ट अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज करवाएंगे। खालिद भट्ट चौक जो कि प्रपोज किया गया था, अगर वो बन जाता और साथ में उसके घोड़ा चौक का फ्लाईओवर भी बन जाता तो आज 5 साल के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा जो है सहूलत होती। बहरहाल मुख्तलिफ़ हुकूमतों के मुख्तलिफ़ फ़ैसले, कुछ फ़ैसले जो हैं वो आवाम के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सैयद असफर अली नासिर की ज़ेरे सदारत पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का इजलास भी हुआ। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की 850 से ज़ायद जारी स्कीमों के फंड्स इलेक्शन कमीशन ने मुंजमद किए हैं। फंड्स जारी न होने से बहुत सी तरक्याती स्कीमें रुकी हुई हैं। सूबाई वज़ीर ने महकमा को तरक्याती स्कीम मुकम्मल होने के बाद उसकी देखभाल के लिए भी मैकेनिज्म बनाने की हिदायत की। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद से पंजाब केटल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल लतीफ़ ने मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब की मवेशी मंडियों की सफाई, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को बेहतर करने पर बात हुई। उन्होंने कहा कि मवेशी मंडियों के हिफाजती इक़दामात के लिए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के पेशा वाराना तजर्बे से इस्तेफ़ादा किया जाए। मवेशियों की तजारत से फ़ायदा उठाने के लिए CPAC रूट के साथ साथ नए मवेशी मंडियाँ बनाने का जायज़ा लिया जाए। ईद उल अज़हा से पहले ज़िला इंतज़ामिया से कोऑर्डिनेशन करके कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स मुकर्रर किए जाएँ। चीफ एग्जीक्यूटिव कैटल मार्केटिंग कंपनी रेवेन्यू अहदाफ के हसूल के लिए अपने डिविजनल अफसरान की कारकर्दगी मॉनिटर करेगी।
خبر شامل کریں کھیل کے میدان سے اور آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور کلب لیول پر کھیلوں کے مقابلے کرانے کی منظوری دے دی ہے۔ صوبہ بھر میں تحصیل، ڈسٹرکٹ، ڈویژن اور صوبائی سطح پر کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نوجوانوں کو کھیل کے میدان میں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ دیہات اور دور دراز علاقوں میں چھپے ٹیلنٹ کو سامنے لایا جائے گا۔ جیتنے والی ٹیموں کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 1 ماہ تک جاری رہنے والے اسپورٹس ایونٹس میں کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، والی بال، ایتھلیٹکس اور کبڈی کے مقابلے ہوں گے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، صوبائی مشیر کھیل وہاب ریاض اور سیکرٹری اسپورٹ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ جامعات کے طلباء کو 5 کروڑ کی سالانہ اسکالرشپس ملے گی۔ مقامی ٹرسٹ اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے MOU سائن کر لیا۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب ڈاکٹر شاہد منیر، مقامی ٹرسٹ اور جامعات کے وائس چانسلرز نے MOU پر سائن کیا۔ مقامی ٹرسٹ نے ضرورت مند اور باصلاحیت طلباء کے لیے اسکالرشپس کا اعلان کیا۔ اسکالرشپ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر نگرانی دی جائیں گی۔ شہر کی 6 جامعات کے طلباء کو اسکالرشپ ملے گی۔ پنجاب یونیورسٹی، UET، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے سالانہ 500 طلباء کو 1 لاکھ روپے اسکالرشپ دی جائے گی۔